All my dear students, young students and their respected parents, a very good evening to all of you. I am Professor CA CMA AD Singh. I am a chartered accountant. I am a cost and management accountant. I am Chairman and Managing Director of Edward Academy Private Limited. I am also Chairman Managing Director of Edward Wealth Private Limited, which is a financial consultancy firm. We are a registered AMFI mutual fund distributor. I am a stock market intermediary and I am also an insurance advisor. So वो जो सारा मेरा बाकी का काम है, corporate seminars and handling my clients, वो मैं थोड़ा सा टाइम करता हूँ. My 12 hours of an average working day are devoted to teaching and my students. Okay. Apart from that, I am also investor in some small businesses, an investor in various stock markets in India, in USA and abroad. तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ investment करते रहता हूँ. I have special interest in businesses, in the stock market, in financial services. I have certain number of clients who look up to me. I am also corporate. I conduct corporate seminars and I advise companies on taxation, on investment, on how to handle their money, which is called treasury management. तो वैसा भी थोड़ा थोड़ा काम होता है. But I am a teacher at heart, and if you ask me in one word, sir, who you are, so I am a teacher and mentor of CACS students. And now 11-12 also, since last couple of years, we have had special focus in 11-12 standard batches. So in my academy, we conduct these special 11-12 batches जहाँ पे हम 11 standard से ही बच्चों को CA और CS सिखाना शुरू करते हैं. I am originally from Delhi, but now I'm Maharashtrian. It has been like 30 years in Maharashtra now and about 20 years in Pune. So I am actually a Puneri. मला येते मराठी, मी खूप जास्त मराठीमध्ये बोलू शकत नाही. And a lot of my students and parents, they are from out of Maharashtra. So generally we keep the mode of communication in English, Hindi and English. But थोड़ा बहुत बीच बीच में मराठी बोल लेते हैं and थोड़े बहुत jokes मराठी में crack करते हैं. So yes, just 2 days back, we have been blessed with amazing, outstanding results of our 12th standard CSCS students. So as you can see, 100 upon 100, 99 upon 100, 100 upon 100 in accounts, 97 in OC. Just look at all of these students. We were working on this today. And और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका यहाँ पे प्लॉटिंग बाकी बचा है. वी फेलिसिटेटेड ऑल ऑफ देम. देखो इतने सारे बच्चे हैं, उनका प्लॉटिंग सब बचा है अभी. सो यस, अमेजिंग रिजल्ट्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स. एंड दिस ईयर ऑल्सो जो 11 से 12th में बच्चे गए हैं, इट वॉज अ बैच ऑफ 16 स्टूडेंट्स हु वेंट फ्रॉम 11 to 12th and 10 students scored full marks in their midterm exams. And around 8 students have scored full marks in accountancy in their final exam. So this year we are expecting at least by 8 तो आए जो accounts में 100 upon 100 हो. So it gives me immense pleasure to announce that generally these toppers, as you can clearly see, generally these toppers are my CACS 11-12 students. So क्या होता है कि if you start a professional course right from the beginning, your frame of mind is altered. The discipline that you incorporate in your life is different than a normal 11-12 student. वो 11वीं के कॉमर्स के बच्चों को यह लगता है, अरे आता निवांत, अभी दिस इज आराम ईयर. 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स फील 11 स्टैंडर्ड इज ब्रेक ईयर, आराम ईयर. नो 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 नो. The physics, the chemistry, the biology that we study in 9th and 10th is definitely important, but it is not going to earn your bread and butter. But the accountancy, the taxation, the mathematics, cost and management accounting, FM, OC, economics, SP, secretarial practice, ये सारे subjects we commerce professionals, CA, CS, CMA, LLBs, MBAs, we use it in our day-to-day life to guide, help our clients and to earn good money. So what a child of commerce studies in 11th standard is going to help them. जो बच्चा 11वीं से पढ़ाई करता है कॉमर्स की, ये कॉमर्स के विषय उसको मदद करते हैं to earn bread and butter in the future. This fact students don't realize. And we get many students in our CACS batches 12वीं नंतर कि sir I am completely lost.
मेरे को किसी ने बताया नहीं मैथमेटिक्स लेना था। और सर सीएसईटी के अंदर भी मैथमेटिक्स है सर, दो मैथमेटिक्स है, 2 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स के सीएस के अंदर। आई डिड नॉट नो, पीपल टोल्ड मी एसपी गे आता का है। अभी क्या सर एमबीए एंट्रेंस के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ना है, लॉ एंट्रेंस में मैथमेटिक्स पढ़ना है, क्लैट सीईटी ये सब में मैथ है। मुझे तो पता ही नहीं था यार, मुझे तो किसी ने गाइड ही नहीं किया। सीए स्टूडेंट्स, अरे सर एसपी अपने को भी है क्या सर, पूरा कंपनी लॉ अपने को भी है, ये बाद में मालूम पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। थैंक गॉड फॉर द लेटेस्ट ट्रेंड्स, थैंक गॉड फॉर हंड्रेड्स ऑफ कोचिंग्स ऑल ओवर इंडिया। वी आर जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन कि हम लोग ने बच्चों को अभी गाइड करना शुरू किया राइट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। आई कंडक्ट सेमिनार्स इन स्कूल्स फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। इट इज वेरी कॉमन। अभी कमिंस कॉलेज कमिंस कंपनी के अंदर आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ करियर काउंसलिंग सेमिनार ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दिस कमिंग सैटरडे। सो वी कीप ऑन टेकिंग these seminars and we keep on increasing awareness. We along with so many other coachings and professionals in around Pune, in Maharashtra, all over India, again we are just a drop in the ocean. हम बस कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को। सो बच्चों को थैंक गॉड नाउ दे हैव द नॉलेज कि हाँ बॉस ओके, कॉमर्स इज नॉट एरा गैरा तुच्छ फील्ड। पहले क्या लगता था, बाड़ा तू साइंस घे, साइंस मतलब कि बेस्ट फील्ड, जो कॉमर्स लेता है उसको अक्ल नहीं होता, और बिल्कुल ही अक्ल नहीं है तो आर्ट्स लेना। दैट इज फार फ्रॉम ट्रुथ, दैट इज फार फ्रॉम ट्रुथ। एनीवेज I will start with a session, otherwise मेरे अंदर का जो लेक्चरर है वो जाग रहा है, and I'll just keep on rambling on. Welcome to Edward Academy Private Limited, a leading coaching at India level. I have 2 students in Dubai right now and 1 in Nepal. So please note that there are other countries जहाँ पे CACS के centers होते हैं, तो बाहर के भी बच्चे होते हैं, but yeah, we are primarily teaching 11th, 12th and CACS in India. So welcome to Edward Academy Private Limited. We believe in quality, we believe in limited number of students. मेरे क्लासरूम ऊपर का इससे भी थोड़ा छोटा है, वो क्लासरूम में अच्छे से पैक होके स्टूडेंट्स बैठते हैं। इट इज अ कंफर्टेबल हाइब्रिड क्लासरूम, अगेन लॉट ऑफ कंप्यूटर्स एंड वाईफाई एंड एसीज एंड व्हाट नॉट, सब कुछ है उसमें। Whenever we take class, the classes are conducted in 3-tier mode. सबसे फर्स्ट लेवल इज फेस टू फेस, तो जिसको भी क्लास अटेंड करनी है आप फेस टू फेस करो, दैट इज द मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन। नंबर 2 इज लाइव ऑनलाइन। सर लाइव ऑनलाइन में पढ़ाई होती है क्या? I'll show you something. I'll show you something. Can you see प्रथमेश साळुंके here? कुठे गेला तो? हाँ, my hero. प्रथमेश साळुंके has attended in 11th and 12th all the lectures online. All the lectures online. एंड सर्टन लेक्चर्स को पुणे में आके बैठा है वो, मैंने उसको बोला बेटा थोड़ा थोड़ा आ ताकि तू हमसे मिले। नाउ इन सीए फाउंडेशन ही हैज स्टार्टेड कमिंग ऑफलाइन, मतलब फेस टू फेस। ही स्कोर्ड 100 upon 100 in accounts. Another star student of mine, Isha, she has attended all 11th and 12th, all lectures online only. Accounts 94 और बाकी इको ओसी मैथ सब में भी 90+ है। हमारा प्लॉट करना रह गया अभी बहुत सारा। सो ऑनलाइन भी बहुत अमेजिंग पढ़ाई होती है। इफ यू कीप योर कैमरा ऑन, यू इंटरैक्ट विद मी नॉन स्टॉप, वेन एवर आई टेल यू टू सबमिट असाइनमेंट, यू सबमिट द असाइनमेंट्स। So online also we check everything. All the students are supposed to report to me online. If you don't, then I'll not let you in. Just look at this. Can you see all these students who are reporting to me online? See, these are all students connected with me online. दिख रहा है क्या? ये सब मुझे देखो online scores भेज रहे हैं, what not they are doing. So we use online facility also for live classes. And third mode is recorded batch. Everything, every class that is conducted in Edward Academy, any of our classrooms, is 100% recorded 1080p Ultra HD. You can watch our recordings on Android phones, you can watch on iOS, you can watch on tab, you can watch on laptop, you can watch on your big screens. So इस तरीके से हमारा सेशन होता है। This session also certain students and parents are online. आप में से काफी लोग हमारे साथ हो, and the session is also getting recorded. जब बाद में हमारे पास काउंसलिंग के लिए आएगा कोई, तो हम उसको सेशन दे सकते हैं। So coming back to topic at hand, careers in commerce after 10th standard. 10वी नंतर काय, अभी हमें क्या करना चाहिए? सो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वी आर ब्रेकिंग द सेशन इनटू 6 पार्ट्स. फर्स्ट वी विल टेल यू अबाउट कॉमर्स फील्ड. नंबर 2 वी विल टेल यू अबाउट CACS, which you can start with 11th standard, some details on CACS course. मैंने थोड़ा ऑर्डर चेंज किया अभी. Then I'm going to tell you about subjects in commerce and certain details about colleges. उसके बाद में वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैच शेड्यूल. सिर्फ 2 मिनट्स ही बताऊंगा, आई विल नॉट बोर यू विद दैट.
the batch schedule, how we take classes here, and the last thing we are going to have a question answer round. Sir, गणित घ्यायचं का? Sir, should I take mathematics? Sir, should I take SP? Sir, मेरे को BMCC में ही जाने का है, but sir, BM में मेरे को गणित नहीं मिल रहा, अब क्या? सर, मेरे ये फ्रेंड का वहां कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, मेरे को मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर वाडिया कॉलेज जाना है, स्टे इन कोथरूड, आई वांट टू गो टू वाडिया कॉलेज. अत्ता का है सर, बीकॉम का क्या, बीकॉम के कॉलेज का क्या? सर, व्हाट अबाउट CSCS, हाउ टू? सो विल टेल यू एवरीथिंग. जो भी कॉमन FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो हम आपको बताएंगे. प्लस देयर विल बी एन ओपन क्वेश्चन आंसर राउंड. विल ट्राई टू लिमिट इट ताकि सबका टाइम इन्वेस्ट ना हो कलेक्टिवली. So we'll quickly answer your questions. If we feel that it is a very intricate question or it requires personal guidance, we will meet you right now in the cabin after the session is over. Okay. So moving forward to how commerce is the best field after 10th standard. 10वीं के बाद commerce is one of the best fields. I'll not undermine any profession or I'll not pass comments कि अभी just क्या हुआ था, but I'll tell you a small story. By the way, my wife is an engineer employed at Infosys. She's earning very well, and together we are able to have a good lifestyle for our family and our children. Primarily because my wife is also earning, it gives her confidence. She is an expert engineer. She is an IT engineer working for global clients. So I'm very proud of her. I have 3 very good doctors of mine, जिनका mobile phone मेरे पास है. I call them on mobile phone. These 3 doctors are science graduates and they have my complete respect. So I'm not undermining any profession. The laptop that we have, the building we are sitting in, ये architects और civil engineers ने बनाया है. So due respect to everyone who pursues science and arts. But commerce is one of the best fields. Doctors come to us for tax planning. Doctors come to us for investment planning. They come to us for treasury management. They are not taught even the ABCs of taxation, right? Commerce के जो professionals होते हैं, they are well respected all over the world. सिर्फ हमारी ही एक country है जहां पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है commerce वो लोग लेते हैं जिनको अच्छा score नहीं है. I have students who have scored 100 upon 100 in various subjects, including mathematics, in their 10th standard, and they want to pursue CSCS. ऐसा बिल्कुल नहीं है. लॉन्ग आर द डेज आर गॉन जहां पे लोगों को ऐसा लगता था कि बाबा साइंस ही एक फील्ड है. कॉमर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन इट्स ओन डिफरेंट वे. ओके, सो कमर्शियल नॉलेज इज मस्ट फॉर एनी बिजनेस. बेचारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, ये लोग स्ट्रगल करते हैं. What is a limited liability partnership? What is a private company? What is a public company? Who is a director? How to file returns? How to do this? How to do that? Company is an artificial legal entity. कंपनी का liability अलग होता है. कंपनी के नाम पे बैंक लोन अलग होता है. कंपनी का पैन कार्ड क्यों अलग है? HUF का पैन कार्ड क्यों अलग है? मेरी वाइफ का अलग क्यों है? मेरा क्यों अलग है? ये 5 लाख एग्जेम्पशन किसको मिल रहा है? कंपनी को 5 लाख एग्जेम्पशन क्यों नहीं मिल रहा है? So confused, they don't know what to do with their money, right? So commercial knowledge अगर आपको है तो no matter who you are, you can do well in life. So commercial knowledge is must फॉर एवरीवन. इनफैक्ट मैं तो ऐसा एडवोकेट करूंगा कि यार 9th और 10th में ही टैक्सेशन होना चाहिए, 9th 10th में ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और अकाउंटेंसी होना चाहिए. इट शुड बी कंपलसरी फॉर एवरीवन. जैसे हम लोग ने साइंस पढ़ा है, PCM और मैथमेटिक्स पढ़ाई, राइट? सो वैसे ही सबको कमर्शियल नॉलेज कंपलसरी होना चाहिए. नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, इनकम टैक्स, GST, बैंकिंग, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, मर्केंटाइल लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर सब्जेक्ट्स इज मस्ट इफ यू स्टे इन सिविलाइज्ड सोसाइटी. जैसे हमें पता होता है कि यार वाटर में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, H2O उसका फॉर्मूला है. बेसिक्स वी नो, वी शुड नो. वैसे ही साइंस के लोगों को भी बेसिक्स पता होना चाहिए. एंड फ्यूचर इज सिक्योर्ड फॉर कॉमर्स प्रोफेशनल्स. कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई विल नॉट नेम द एंटिटी. आई वाज सिटिंग इन अ ह्यूज कंपनी जस्ट 3 days बैक. मैंने उनका जैकेट पहना कंपनी का. इट इज लाइक वहां पे फैक्ट्री गेट था, तो कोई गाड़ी आपको हिट ना करे, आफ्टर कंपल्सरी वेयर सेफ्टी वेस्ट. सेफ्टी वेस्ट पहन के आई वाज सिटिंग विद द मैनेजमेंट के लोगों ने बोला कि सिंह साहब कॉमर्स के बारे में तो बता रहे हो, बट सिंह साहब एक इश्यू है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को हमने इंजीनियरिंग करना है. कंपनी ने उनका लोन दिया है एम्प्लॉइज को ताकि वो इंजीनियरिंग कर सके. एंड इंजीनियर्स बनने के बाद देयर इज दिस ग्रुप ऑफ अराउंड 50 स्टाफ मेंबर्स जिनके बच्चे हु आर अनेबल टू गेट अ जॉब. Please guide about that. I said, sir, sorry, this is not my domain because I am a chartered accountant, cost and management accountant. My domain is commerce. मैं उसके बारे में आपको गाइड कर सकता हूँ, बट एक चीज बताता हूँ एज एन एजुकेटर कि यार जो जॉब मिल रहा है ले लो, गेट गुड एक्सपीरियंस, गेट गुड नेटवर्क, गेट कनेक्टेड विद पीपल हु कैन हेल्प यू.
गेट रेफरेंसेस एंड देन धीरे धीरे 2-4 साल में अच्छा जॉब लगेगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. बट द बेरोजगारी दैट वी हैव इन इंडिया, कोई भी उठ के चल के बोलता है भाई मुझे साइंस करना है, इंजीनियरिंग करना है. यहाँ पे लोगों को पता नहीं कंप्यूटर का HDMI पोर्ट क्या होता है, एथरनेट पोर्ट क्या होता है. दे वांट टू बिकम कंप्यूटर इंजीनियर्स. अरे व्हाट द हेल आर यू गोइंग टू डू इन रियल लाइफ? ऐसी हालत हो चुकी है अभी. एंड द नंबर ऑफ इंजीनियर्स MBAs दैट वी हैव, दे आर इन crores, I think, not even lakhs, they are in crores, I think. Do you know how many chartered accountants we have in India? 4 lakh, minus people who have passed away or people who have retired, not able to work now. I have many mentors who are not working now. Chartered accountants, filthy rich, not working now. उनको माइनस करो क्योंकि प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं है, वो जॉब नहीं कर रहे. नंबर 2, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया छोड़ के चले गए, उनको माइनस करो 4 लाख में से. जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको माइनस करो, मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को माइनस करो. बिकॉज वी आर डायरेक्टर्स इन कंपनीज, वी आर बिजनेसमैन. सो हम लोग अटेस्टेशन नहीं कर सकते CA का, बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग एल्स. देन बचे कितने? लगभग 1,50,000-1,60,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड द नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, द नंबर ऑफ कंपनीज इन इंडिया इज 15 lakh एंड द नंबर ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया इज इन crores. And every business needs a chartered accountant. Number of company secretaries पता है कितना है अभी? CS, company secretary. Company cannot be incorporated without company secretary. Company का board meeting, AGM, ये सब company secretary लेते हैं. Every company with investment more than 10 crore has to hire a CS, full time CS. CS पता है कितने? 80,000. 80,000 CS in India. India की आबादी है 142 crore people. So CS are not only getting multiple offers, they are not only getting good salaries, there is acute shortage of CS in India as compared to engineers, MBAs and lawyers. No offense to anyone, lawyers बहुत कमाते हैं, MBAs भी कमाते हैं, engineers भी बहुत कमाते हैं, to each their own. मैं सिर्फ generalized trend बता रहा हूँ that if I take randomly 100 engineers, many of them are unemployed. I am yet to meet a CS who is saying, sir attestation मला झेपत नहीं, कळत नहीं, सर मेरे को जॉब ऑफर नहीं है, सर मेरे को धंधा करना नहीं आता, मुझे प्रैक्टिस करना नहीं आता. I am yet to meet one. So there lies the difference. But sir CS तो बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग से इजी है, MBBS से तो बहुत इजी है. Come on, I have seen engineering books, उससे बहुत इजी है. Let me tell you that. Anyways, we'll come to it. Commerce is one of the best fields. If you go abroad, you go outside India, commerce professionals are so respected. मैं आपको क्या बताऊँ, इंडिया में ही है सिर्फ कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार साइंस के लोग की इज्जत होती है, राइट? तो CS के जिसके आगे पीछे आप इतना घूमते हो वो लोग कौन है? हम भी कॉमर्स के प्रोफेशनल्स है ना, राइट? सो कॉमर्स इज अ वेरी गुड फील्ड. It is a beautiful field. I am also topper, full marks in mathematics. I opted for commerce field. I was confused मुझे क्या करना है. Then I decided, नहीं, commerce is for me. I'll do CA course. And with that, I'm very successful and very happy. Okay. Next, I'll quickly tell you about CACS. Then we'll go to subjects in commerce. So I'll just try to keep the sessions short. Sir, मुझे और knowledge चाहिए, तो you come and meet me. आप मुझे आके मिलो, हम आराम से आपको और बहुत सारा knowledge देंगे. We have given you these sets. उसके अंदर एक करियर काउंसलिंग शीट्स है, उसके अंदर ये सब डेटा है. सो सर व्हाट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड व्हाट इज अ कंपनी सेक्रेटरी, एंड सर व्हाई हैव यू डिवोटेड योर लाइफ इन टीचिंग दीज 2 कोर्सेस बाय द वे. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ प्रोफेशनल हु डज योर अकाउंटिंग. अकाउंट्स को चेक करने के प्रोसेस को ऑडिटिंग बोलते हैं, और इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेशन, असेसमेंट और उसका ऑडिट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से इंडिया में कर सकते हैं. आप ऐसा मान के चलो, हर कंपनी और हर बड़े बिजनेस को एक CA की सर्विसेज कंपल्सरली लेनी पड़ती है. इट इज मैंडेटरी बाय लॉ. इट इज मैंडेटरी बाय लॉ. इनफैक्ट आप CA से अटेस्टेशन नहीं करो 3 साल, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा. इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग फ्रॉड. वैसे ही कंपनी सेक्रेटरीज आर अ सेट ऑफ एलीट प्रोफेशनल्स who are responsible to register company, to incorporate day-to-day working of the company, conducting board meeting, conducting AGMs, conducting EGMs, and they are essentially company के lawyers. ये company के lawyers होते हैं, ये company के legal counsel होते हैं. Almost all of my students who are CS are LLBs, LLMs. All faculties of Edward Academy who are company secretary, they are LLBs, LLMs. CS LLM Rupali Bora Purohit Madam is the Vice Chairperson of Jodhpur Branch ICSI. CS LLM Archana Joshi Madam
she is also associated with the CS Institute at operational level. CS LLM Suraj Bora sir, who is a practicing lawyer and a company secretary, is also a faculty in Edward Academy. So CS जो करता है, you are lawyers, you are company के lawyers. बहुत सारी कंट्री में जो कंपनी का कायदा कानून है वो लॉयर्स को ही दिया गया है. तो लॉयर्स हैव स्पेशलाइजेशन और मेजर्स इन कॉर्पोरेट लॉ. इन इंडिया there are many things about company which lawyer cannot do, only company secretary can. Company secretary is corporate lawyer, company ka lawyer. Their attestation is necessary in many documents, no substitute. CS का मतलब CS का attestation लगता है. In fact, I'll just quickly show you that. I do not want to bhatkofy, but I'll just show you that. I'll show you something, all of you, so that you exactly know what I'm talking about. यस, सो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि सीएस की सैलरी कितनी होती है. सो एट द आउटसेट ओनली कुछ मिथ आपके चले जाए, प्लस आई वांट टू शो यू सम अटेस्टेशंस. या ये मेरे सीएस के बैच के साथ मैंने अप्रैल 2024 में बैठ के कुछ डेटा प्लॉट किया है. These are salary of company secretary. I'll show you attestations of CS also in a short while. Look at CS Dev Bajpai, whose salary is 9.46 crores. Asian Paint के जो company secretaries है, उनका 3.69 करोड़. अडानी ग्रुप के जो CS राजेश पाटिल है 3.2 करोड़. And these are the salaries in crores. आपको दिख रहा है? So I'm not saying that if you become CS today, अगर आप आज CS बन गए तो आज से ही आपको करोड़ रुपीस मिलने शुरू हो जाएंगे. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, बट यंग स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट एज यू बिकम CS अराउंड आफ्टर 5 to 10 years of your job, I promise you tentatively you will be earning 2 lakh per month, which is very good income. It is very good to have a nice maybe 2 BHK in Pune. I'll not say 3 BHK, nice 2 BHK Pune in a posh area, and to have a nice car and to have a nice comfortable lifestyle. Not that money is everything, not that money is everything, but I just wanted to tell you that. And CA का डेटा सब यहाँ वहाँ थोड़ा है. It is in non-12th, non-11th standard counseling seminar. I'll not waste any time in that. But yes, जो कंपनी सेक्रेटरीज है उनका तो सैलरी हाई होता ही है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनका भी सैलरी करोड़ में होता है. स्टार्टिंग सैलरी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने 2 साल पहले बोला था कैंपस प्लेसमेंट में वॉज एवरेज 10.48 लाख स्टार्टिंग पैकेज पर एनम. सो लगभग 1 लाख पर मंथ ये स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का. चलो, सो विल गेट टू दैट इन अ वाइल. नाउ अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया इज 4 लाख. 4 लाख में काफी सारे CS माइनस होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ओनली 80,000 इन इंडिया. Other name for CA are chartered accountants को certified accountant. CPA, America and American influence nations में CPA बोलते हैं. You look at UK, you look at Australia, you look at Netherlands, you look at India, we call them chartered accountant. And these American, Mexico, these certain countries they called CPA, certified public accountant. Okay, one and the same degree. CA के दूसरे नाम है auditor, tax expert, tax lawyer, compliance expert, finance expert, etc. And company secretary के दूसरे नाम है corporate lawyer, governance professional, कॉम्प्लायंस ऑडिटर, लीगल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट. यूनाइटेड किंगडम में कंपनी सेक्रेटरीज को चार्टर्ड सेक्रेटरी बोलते हैं. सीए करना है तो देयर आर 3 लेवल्स इन सीए कोर्स. द फर्स्ट लेवल इज द फाउंडेशन लेवल, मतलब कि एंट्रेंस लेवल है ये. दिस लेवल कैन बी गिवन बाय एनी स्टूडेंट हु हैज अपीयर्ड फॉर 12th स्टैंडर्ड पेपर्स, एंड यू कैन क्वालिफाई फॉर रिजल्ट ओनली व्हेन 12th का पास मार्कशीट आपके पास आ जाए. ओके, उसके बाद में मध्यम मतलब सीए इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद में सीए फाइनल लेवल. सीए कोर्स लगभग 4 साल का है. नाउ दिस जनरेशन इज द मोस्ट लकीएस्ट इन सीए कोर्स. अर्लियर सीए इंटर में 8 सब्जेक्ट्स थे और सीए फाइनल में 8 सब्जेक्ट्स थे. Hi online students, I think many students and parents have logged in. I am unable to talk to you individually because I have already started with the session. Welcome to my session. I am CSEMAD Singh and we have just started with the session. I hope everyone online is able to hear me and see me. Yes? Online students and parents, you are able to see me, hear me? Yes? Yes?
Okay, I think thumbs up आ गए वहां से. Rucha, you people are able to see me? Yes. Okay, great. So these are the 3 levels in CA. Now the most amazing thing about CA courses from this year 2024, CA के इंटर में 8 सब्जेक्ट्स थे, फाइनल में 8 थे, अभी उसको 6 कर दिया. इनफैक्ट CS के अंदर 7 सब्जेक्ट्स है. So there is more studies in CS at this point. And CA इंटर CA फाइनल में पहले साल में 2 अटेम्प्ट होते थे. हम जोक में ऐसा कहते थे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज मे. नवंबर और मई में अटेम्प्ट होता है ना, तो नवंबर में टपकी खाई तो मई में आके अटेम्प्ट दे दो. बट नाउ देयर आर 3 अटेम्प्ट्स फ्रॉम दिस ईयर. दिस इज द फर्स्ट ईयर एंड द फर्स्ट अटेम्प्ट ट्रिपल अटेम्प्ट वाला इज दिस सितंबर. सो अभी से सितंबर में एक पेपर होगा बच्चों का, उसके बाद में जनवरी में होगा, उसके बाद में मई में होगा. इंटर बी एंड फाउंडेशन लेवल बी. फाइनल लेवल के अभी भी 2 ही पेपर्स है. सो सीए हैज बिकम रिलेटिवली इजी. आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन भी उन्होंने कम कर दिया है. सो वी आर ब्लेस्ड, दिस जनरेशन इज ब्लेस्ड. द इंस्टीट्यूट वांट्स टू क्रिएट, इंस्टीट्यूट का कहना है 40 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स in the next 30 years, when India is expected to become the world's #1 economy. We are right now number 3, third to only USA and China. Okay. एंड वैसे ही CS का जो लेवल है उसमें भी 3 CS कोर्स में 3 लेवल्स है. द फर्स्ट लेवल इज एंट्रेंस एग्जाम CA/CET. द सेकंड लेवल इज एग्जीक्यूटिव मतलब मध्यम इंटर लेवल, एंड द लास्ट फाइनल लेवल इज कॉल्ड प्रोफेशनल लेवल. नो CA करने में लगभग 4 साल लगेंगे, CS करने में लगभग 3 इयर्स लगेंगे. टेंटेटिवली स्पीकिंग इट इज डिफरेंट फॉर ईच स्टूडेंट. इट डिपेंड्स आप कोई एग्जाम स्किप कर रहे हो क्या, और आप कोई एग्जाम में हाफ लेवल ही दे रहे हो क्या. सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ गिविंग हाफ पार्ट ऑफ द एग्जाम राइट नाउ एंड हाफ पार्ट आफ्टर 6 months. So it really depends, but on an average if you see, you can become CA in 4 years and you can become CS in about 3 years. इससे कम टाइम में भी होता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लगता है. बट अगर बच्चा 16 साल में शुरू कर रहा है तो काफी राइट टाइम पे हो जाता है. Core areas of studies in CA are accounts, audit, tax, FM, cost and management accounting, mercantile law, IT, math, management. In CS, core subjects are more of laws. कायदा कानून थोड़ा ज्यादा है. Accounts, tax, audit भी है, बट थोड़ा सा कम है slightly. There is FM also, cost and management accounting also and management also. कुछ लोग को मिथ है कि CS में बहुत सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं. Absolutely not. The subjects are same in CA, CS, CMA, MBA, BCom. In commerce courses, the subjects are same. The level of difficulty is definitely different. CA is more numerically inclined. यहाँ पे numerical topics ज़्यादा होते हैं, जैसे accounts, FM, tax, cost and management accounting. CS में law थोड़ा ज़्यादा होता है. Certain comparative points. Many parents and students ask me, sir, क्या फर्क है? What is the difference between CA, CS? CA में main focus is on practicals. ज़्यादा करके written papers है. Knowledge of mathematics is must. गणित का ज्ञान आपको होना चाहिए. 3 साल की आर्टिकलशिप है. Now it is reduced to 2 years in the middle of the course. The duration of CA course right now is tentatively about 4 years. Up to 5 आप मान के चलो, अगर आप attempt को delay करते हो तो. वंस इन अ वाइल किसी का अटेम्प्ट डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ इलनेस और अदर रीजंस. CS के अंदर मेन फोकस इज ऑन लॉज एंड प्रैक्टिकल्स. देयर आर मेनी मोर MCQ पेपर्स. इनफैक्ट जो CS का फर्स्ट लेवल है पूरा MCQ ही है. अभी CA लेवल में भी काफी MCQs आ गए. इन फाइनल एंड इन इंटर लेवल देयर आर 30 मार्क्स ऑफ MCQ एंड 70 मार्क्स आर रिटन पेपर. सो MCQ इज मल्टीपल ऑप्शन A, B, C, D, ऐसे अलग अलग ऑप्शन होते हैं. यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट, सर्कल इट. Only basic knowledge of mathematics is required in CS, but CS में भी मैथ आना चाहिए. 15 months का आर्टिकलशिप है CS का. Now it is extended to 21 months. The duration of CS course is 3 to 4 years. Sir, मैं CA लूं या मैं CS करूं? Young students and parents, ध्यान से सुनो. I am no one. And students, तुम्हारे माता पिता कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है तुम्हें बोलने वाला कि बाबा तेरी लायकी नहीं है और तू ये या वो नहीं कर सकता या कर सकती. डोंट लिसन टू एनीवन इंक्लूडिंग पेरेंट्स. पेरेंट्स आर जस्ट लाइक गॉड. ड्यू रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स. पेरेंट्स के चरण हर दिन छूने चाहिए, बट पेरेंट्स कैनॉट टेल स्टूडेंट्स कि तू नहीं कर सकता CS. लेट द चाइल्ड ट्राई. आई बिलीव इन वन थिंग, अटेम्प्ट करने का और ट्राई करने का हक हर बच्चे को है. I have had students come to me. One of my students, he failed 12th standard mathematics. मेरा नहीं था 12th का. In fact, वो टाइम पे हम 12th नहीं लेते थे. This is like 8 years back. He failed 12th mathematics.
मेरे को बाद में मालूम पड़ा उसके एग्जाम के टाइम पे, ही क्लियर CA फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, CA इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट नाउ इज इन CA फाइनल. I will repeat again, the child failed in 12वीं mathematics. He later on cleared his CA different levels. So you never know. अरे बच्चे को 10वीं में नफरत है हिस्ट्री ज्योग्राफी से, साइंस से, तो बच्चा नहीं परफॉर्म करता, उसको नहीं पसंद है हिंदी मराठी देवनागरी स्क्रिप्ट संस्कृत नहीं पसंद बच्चे को. बाद में जब पैसा दिखता है, कॉमर्स दिखता है, धंधा दिखता है, टैक्स दिखता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिखता है, तो मेनी स्टूडेंट्स गेट पुल टुवर्ड्स इट. आई हार्डली हैव एनी स्टूडेंट जो बोलेगा आज सर ने बहुत बोर किया, हार्डली. आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आई एम सो ब्लेस्ड. द किड्स लव माय क्लास, दे लव CACS कोर्स. एंड भगवान ना करे किसी को कभी गलती से छोड़ना पड़े बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, और नहीं तू कमा अभी, और तू हमारे पास पैसे नहीं है फाइनल लेवल करने को तो जॉब शुरू कर दे, वॉट एवर. स्टूडेंट्स हु मीट मी इवन आफ्टर ड्रॉपिंग द कोर्स, जैसे सर आपने जो ज्ञान दिया उससे BCom हुआ है सर, उससे LLB हुआ है, उससे MBA हुआ है, थैंक यू टू यू एंड टू दिस कोर्स, एंड आई विल रीपरस्यू द कोर्स लेटर ऑन. ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं. आई हैव वन स्टूडेंट हु इज 45 years ऑफ एज. मेरे एक स्टूडेंट थे हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टुडे. ही स्टार्टेड व्हेन ही वाज 32, आई वाज 26, ही वाज 32. गुरु पूर्णिमा के दिन पैर छूने, आई वाज लाइक सुनील सर क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, आप बस नमस्कार कर दो, माय ब्लेसिंग्स आर विद यू. ही बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट. 32-year-old मैन बिकेम CA इन अबाउट 36 years ऑफ एज. डोंट लेट एनीवन टेल यू इन लाइफ क्या कर सकते हो क्या नहीं. हाँ बट सर एक गाइडलाइन दो, सर एक गाइडलाइन दो, मेरे को जम सकता है या नहीं, तो गाइडलाइन में दे रहा हूं, बट इट इज अ पर्सनल चॉइस, इट इज अ पर्सनल डिसीजन. मीट मी, टॉक टू माई फैकल्टीज, टॉक टू माई टीम, देन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ओके सर, तो CA परस्यू करूं. जनरली स्पीकिंग, इफ यू हैव, जनरली स्पीकिंग, दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट. ओके सर, मेरे को न्यूमेरिकल्स बहुत पसंद है, आई एम लाइक नंबर क्रंचिंग. You like mathematics, you are ready to devote 5 years of your academics to pursuing this great course. You don't mind office training for 2 to 3 years without pay. You see yourself as a professional who works with numbers, taxation, FM, financial management, धंधा कैसे करना. You want to become a CFO, you should opt for CA course. Should I pursue CS? आपको गणित ज्यादा नहीं पसंद, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं पसंद, but you like languages, you like French, German, Hindi, Marathi, Sanskrit. See, जिसको लैंग्वेजेस पसंद होती है, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेंस है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है दैट दे आर बेटर इन लॉ. तो लीगल लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं. यू लाइक टू चेक कॉम्प्लायंसेस. कॉम्प्लायंस मतलब कि दूसरे व्यक्ति ने वो काम किया या नहीं किया, राइट, लाइक अ लीगल ऑफिसर. यू लाइक टू चेक इफ थिंग्स आर इन अकॉर्डेंस टू रूल्स. You like management, counseling, you should opt for CS course. CS course might be good for you, but please everyone, individually मुझसे मिलने के लिए आओ and then we will take a decision for you. Also, when you join my CACS class in 11th standard, you can shift from CA to CS, CS to CA after 11th standard. Because तब तक हम थोड़े common areas सिखाते हैं. So that option is available. Once you realize कि अरे नहीं यार मेरे को तो मैथ लेना नहीं लेना. We had a wonderful thing this time. मेरे जो 11वीं के 16 बच्चे, उसमें से सुरेंद्र सर, राइट, वेरी सुरेंद्र सर, ही वेंट आउट. ओके, सो जब 11वीं के हमारे बच्चे हैं, सुरेंद्र सर इज द प्राइमरी टीचर ऑफ 11th-12th, इज एन अमेजिंग टीचर. उनकी वजह से इतने सारे बच्चों को 9900 मिले. सो दीज स्टूडेंट्स आई टॉट देम CA and CS both in 11th standard. 2 students did not join CA class. As soon as they cleared 11th, they are like, sir, हम कुछ CA के lectures पढ़े थे, we loved it and we have scored such good marks in mathematics accounts, we want to join CA. And one CS student, they shifted to chartered accountancy. They were scared कि सर मेरे को झेपेगा या नहीं. In 11th, that child got 96 in accountancy. He was like, sir, enroll me for CA now. I want to become CA. CS बाद में, graduation के बाद में करूँगा. Okay? So both courses are topmost courses in India. Now I am telling you the common features of both the courses. And most of the world, अगर आप दुनिया में कहीं पे भी जाओगे तो chartered secretaries and chartered accountants और certified public accountants are very respected professionals. आप दोनों में से कोई भी कोर्स कर दो तो आपको स्टैट्यूटरी, आपको कानूनी शक्तियां मिल जाएगी, पावर्स मिल जाएगी टू पुट योर स्टैम्प ऑन कंपनी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑन टैक्स डॉक्यूमेंट्स. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस, फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंसेस, लाइक कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट, ड्यू डिलिजेंस, टैक्स ऑडिट एंड व्हाट नॉट. ये बहुत सारा काम आप कर सकते हो. इनफैक्ट आपको ये लिस्ट भी दिखा देता हूं. आई हैव दिस लिस्ट समवेयर कि क्या काम आप कर सकते हो. या so chartered accountants can do statutory audit of companies, attestation of financial, tax audit of company, internal audit, GST audit. They are expert in IT return filing.
कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, बिजनेस प्लानिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस, अदर अटेस्टेशन एंड अदर ऑडिट्स. प्लीज नोट दैट स्टैट्यूटरी ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, टैक्स ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, जीएसटी ऑडिट, कस्टम्स ऑडिट, एक्साइज ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, कस्टम्स, एक्साइज ऑडिट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आल्सो, जीएसटी ऑडिट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आल्सो. देयर आर मेनी अटेस्टेशंस व्हिच ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन डू. मैं यहाँ पे लिस्ट भी नहीं कर सकता, इट विल क्रॉस मोर देन 20 आई थिंक. कंपनी सेक्रेटरीज ये स्टैट्यूटरी रिटर्न जो एनुअल रिटर्न होते हैं रजिस्ट्रार के कंपनीज के वो फाइल करते हैं. डे टू डे कॉम्प्लायंस देखते हैं, कॉम्प्लायंसेस विद आरओसी, सेबी, एनएससी, बीएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल. कंपल्सरी अटेस्टेशन ऑफ बैलेंस शीट्स आर डन बाय कंपनी सेक्रेटरीज फर्स्ट एंड देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. नॉट मेनी पीपल नो कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसको पहले सीएस साइन करते हैं, फिर डायरेक्टर साइन करते हैं, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करते हैं. Expert in IT and ROC return filing, special role in mergers, acquisitions and business and corporate restructuring. Due diligence is a special type of audit which company secretaries in most of the cases can do. Other attestation, other audit and many legal matters can be handled by company secretaries. In fact, हमारा ठप्पा बहुत जगह पे लगता है जहाँ पे लोगों को मालूम भी नहीं होता. Like for example, when you want true copy attestation, chartered accountants and company secretaries can do true copy attestation just like lawyers. Not many people know. Anyways, CSCS both are treated at par, respect wise. Sometimes even more respected than doctors, actuaries, engineers. No offense to anyone. Okay. So मेरे doctors जो हैं, so I respect them a lot. They save my life, and they know I am chartered accountant. अरे सिंह साहब सुनो ना, ये लैंड लिया था, ये किया था, क्या होगा, मेरा सीए ऐसा बोल रहा है, आपका भी एक ओपिनियन चाहिए था, जरा बता दो. आई कैन कम टू योर ऑफिस ऑल्सो. सो ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट यू गेट इन सोसाइटी. एवरीवन इन माय सर्कल नोज हु आई एम. आई एम अ सीएसीएमए, आई एम वेल रिस्पेक्टेड. मेरे कंपनी सेक्रेटरी फैकल्टीज है, वो आते हैं तो लोग फ्लड करते हैं उनको विद देयर क्वेश्चंस, विद देयर डाउट्स एंड क्वेरीज. Both professional CSCS, they are offered their degrees and membership numbers by statutory corporation, मतलब government undertaking. ये जो डिग्री मिलती है ना CSCS की, इतनी सुंदर होती है. Anyone can enroll, whether you are open category or whether you are special reserved category or whether you are from any part of India, northeast से हो, north से हो, south से हो, central India से हो, you are not an Indian, you can still do Indian CSCS. Sitting outside India, anyone can do CSCS, whether you are differently abled, whether you are partly blind, etc. does not matter. Does not matter. You can get enrolled to CSCS course by just filing an online form, which my admin team will do for you. The entry is open to everyone who is 12 pass. Even if you are 80, 90 years of age, you are a doctor, you are a science graduate, whoever, you can do CSCS, except for people who are graduate in arts. Arts वाले नहीं कर सकते CSCS. Okay, so anyone can do. Entry is open. So क्या सुंदर चीज है यार. प्रॉब्लम क्या होता है इन दीज इंजीनियरिंग एंड MBA एंड ऑल दी अदर कोर्सेज एंड MBBS ऑल्सो, MD ऑल्सो, यार वो एंट्री करने नहीं देते. ओपन कैटेगरी तो पाप कर दिया हमने. ऐसा यहाँ पे नहीं होता. एनीवन कैन एनरोल. No nothing, कोई कुछ नहीं देखेगा, right? And you are getting your degree not by universities but by the Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, which falls under government entity. तो ये पार्लियामेंट की जो एक्ट्स है वो एक्ट से CSCS इंस्टीट्यूट बनी. ये आपको आपका सील और मेंबरशिप नंबर देगी and you carry it with you for life even after your life. Okay, so I'm very sure once I have a happy healthy life, I pass away, मेरे नीचे के generations बोलेंगे देखो आपके दादाजी, आपके नाना जी, हमारे ancestor, he was late grade CSCMA AD Singh, he was a chartered accountant, cost and management accountant, whatnot. Anyone who is 12 pass can get admission to CSCS course by just paying an amount ranging from 2000. Now CSET registration is 2000 and CA is लगभग 9000 रुपया. Just to pay करना है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा. CSCS कोर्सेज आर डिस्टेंट लर्निंग. इसका कॉलेज नहीं होता है, कॉलेज नहीं होता, क्लासेस नहीं होती इसकी. सो दैट इज व्हाई यू नीड मेंटोर्स लाइक CSCMA AD Singh टू गाइड यू थ्रू द कोर्स. सो नॉट ओनली स्टडी बट हाउ टू स्टडी. सर कितने बजे उठूं, कितने बजे सोऊं, सर अभी क्लास होने के बाद कैसे पढ़ाई करूं, सर एक अटेम्प्ट रह गया, अभी क्या करने का, सर BCom LLB एग्जाम्स आर क्लैशिंग विद CSCS, व्हाट टू डू, सर BCom में अटेंडेंस कंपलसरी है क्या, आप मेरे को अपना सर्टिफिकेट दे सकते हो क्या, वॉट एवर यू नीड आई एम हियर फॉर यू. CA आर्टिकलशिप प्लेसमेंट, CS आर्टिकलशिप प्लेसमेंट, एवरीथिंग इज डन थ्रू माई अकेडमी. वॉट एवर यू नीड. बोथ CSCS कोर्सेज आर इजीली मैनेजेबल और आप आराम से 22 ईयर्स तक खत्म कर सकते हो.
My two merit rankers of CS course, the first merit rankers, I think around 12 years back, CS, Anirvan Bhave, CS Shruti's son, they became company secretaries at 20 and a half. They had to wait for 6 months to get their membership degree. 21 साल के बच्चों को डिग्री मिलती है. ओके, सो दे हैड टू वेट. ऐसे मेरे बच्चे हो चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हो चुके हैं मेरे. सो यू कैन इवन बिकम CSCA at 21, 21 and a half, etc. with right guidance from Eddie sir and coaching in my academy with my mentorship, and you have to listen to my instructions. We have 100% pass percentage in CS18 now, ranging from 65 to 95% pass results in CA Foundation. सर 100% क्यों नहीं है? और अगर बच्चा क्लास में ही नहीं आता, बच्चे को बोला 8 घंटा पढ़, वो बुक खोलता ही नहीं है, मैंने उसको बोला 4 बजे उठ, चल बेटा 5 तक उठ जाना, वो सुबह उठता है 11 बजे, पेरेंट्स आर नॉट सेइंग एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. प्लीज अंडरस्टैंड. सी आई एम नॉट अ जादूगर. तो स्वयं माँ सरस्वती प्रकट हो गई और आप नहीं पढ़ रहे तो फेल होने वाले हो. आई ऑलवेज से 10% आवर एफर्ट्स, 90% योर एफर्ट्स. तो ये चीज CACS में याद रखना, पढ़ाई करना पड़ता है और सेल्फ स्टडी बहुत करना पड़ता है. सो टुडे आई हैव गिवन लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी टू माय CA फाउंडेशन एंड CA इंटर बैचेस. आज मैंने बताया उनको ये इतना घंटा आपको पढ़ना है, मेरे को करके ही दो. मंडे को नहीं करके दोगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास. ओके, सो थोड़ा सेल्फ स्टडी होता ही है. सर कितना घंटा? टिपिकली स्टार्टिंग में 3 to 5 hours. आई एम टॉकिंग अबाउट, बाय द वे, फाउंडेशन इंटर लेवल, नॉट 11, 12. 3 to 5 hours. And later on, after half of the course is over, 8 hours. एग्जाम से 1 महीना पहले स्पेशल अंडरग्राउंड मोड 12 घंटा. 12 से ज़्यादा नहीं होता, मेरे से नहीं हो पाया कभी 12 से ज़्यादा, मे बी 13 घंटा मैक्स. उससे आगे दिमाग खत्म हो जाता है. ओके, सो दैट इज मोर देन इनफ. सी बूंद बूंद से घड़ा भरता है यार. यू स्टडी एवरी डे. मेरा टैक्स का क्लास होता है 6 months मान लो, तो 6 months में 2.5 घंटा सिखाता हूँ. एट द एंड ऑफ इट उसके 500 घंटे के वीडियो लेक्चर्स होते हैं टैक्स के. बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे धीरे 2.5 घंटा सिखा के 500 घंटे होते हैं. तो ऑप्शंस पोस्ट CACS. सर CACS के बाद क्या? तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं. या तो आप जॉब करो, या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करो, मतलब आप अपना CA का ऑफिस खोलो, CS का ऑफिस खोलो, पीछे डिग्री लगानी है आपको यहाँ पे. एंड यू विद इन 1 day यू विल बी गिवन योर अटेस्टेशन नंबर एंड अटेस्टेशन स्टैम्प बाय योर इंस्टीट्यूट्स. देन यू कैन पुट योर अटेस्टेशन ऑन सर्टन डॉक्यूमेंट्स, बट देन यू कैन नॉट बी a business owner, you cannot have a job, etc, etc. So there are some limitations once you do private practice. फिर सिर्फ private practice करना है, या तो फिर आप business profession कर सकते हो. I have many friends who are businessmen or professionals after becoming CA. To quote a few, CA Saurabh Kokate, he is a builder developer along with being a CA in finance. अभी just recently he submitted his certificate of practice. इससे पहले practicing CA भी था. बड़ी बड़ी buildings बनाता है वाकड़ में वो व्यक्ति. He is a multi करोड़पति. So not that money is everything. He's very healthy, nice, 6 feet height, goes to gym every day, enjoys life. जब मैं दिव्यश लॉन में गया था मेरी शादी के लिए, तो दिव्यश लॉन इधर हाईवे पे, तो उसके ओनर से मैं मिला. ओनर ने पूछा बेटा तुम क्या करते हो? बोला सर आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ही सेड अरे वाह, हाई फाई टू यू, आई एम आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनर ऑफ मैरिज लॉन. The CACS are amazing in business. We know the knack of doing businesses. We know the ins and out of businesses. हमने खुद ने इतने ऑडिट्स और इतने बिजनेस को कंसल्टेंसी दी होती है, हमें पता हो जाता है कौन सा बिजनेस अच्छा है कौन सा नहीं. We know how to do tax planning, how to optimize your businesses, right? So, but my suggestion to young kids is पहले जॉब करनी है 2-3 साल. जॉब करके नेटवर्क बनता है, जॉब करके यू अंडरस्टैंड द कॉर्पोरेट कल्चर, दुनिया दिखती है आपको, यू कैन ट्रैवल फॉर योर जॉब्स. And then after a couple of years experience, after getting some sense, then you can shift to private practice or your business. तो जॉब किया तो एक स्टेबल इनकम आता है, बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चला जाता है. प्राइवेट प्रैक्टिस बिजनेस करोगे और अच्छे से उसको सेट कर दिया, तो आप हवाई में जाके वर्जिन पिना कोलाटा पी सकते हो, आराम से लेट के जूस, कोकोनट जूस पियो, एंजॉय करो लाइफ, और आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता जाएगा, बिकॉज पीपल आर वर्किंग फॉर यू, 100 people are working for you. Okay, so that amazing thing you can do in private practice and your business profession. starting में थोड़ा डिफिकल्ट होता है करना, बट once you are set, मैंने तो दोनों साथ में किया, and then later on I shifted to business once my business income was more than my job salary, right? So उसके बारे में बाद में गाइड करूंगा. And after becoming CS, in case you did not know, you can directly do PhD. You can pursue chartered accountancy or company secretaryship of United Kingdom instead of chartered accountants of England and Wales, instead of chartered secretaries and administrators UK. आप couple of exam मुंबई में जाके देके वहां के CACS बन सकते हो. I have 3 friends of mine who are CPA, Indian CA plus CPA USA.
से एक बार अकाउंट्स पढ़ लिया तो उसका 90% नॉलेज आपको होता है, आपको सिर्फ 10% पढ़ाई करके दूसरे कंट्री के एग्जाम देने, यू कैन बिकम सीएसीएस देयर इन मेनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ मतलब विच वर अंडर द रूल ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, तो जो ब्रिटिश क्राउन के रूल के अंडर कंट्रीज थी, लाइक मेनी अफ्रीकन नेशंस, गल्फ नेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक न्यूजीलैंड, यहाँ पे इंडियन सीएसीएस आर डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज हमारे लॉज और कायदे कानून ऑलमोस्ट सेम है। ओके, then you can do many other things like you can do PhD, you can pursue many certification like ISCA, ERPs like SAP, Oracle, JD Edward, MS Suite, MS Dynamics, NetSuite, etc. So बहुत सारे options होते हैं which I cannot even tell you, और उसका अलग 10 घंटे का lecture हो जाएगा, and that has to be by experts जिन्होंने इस पे काम किया, but a lot of career options after you become CACS. Okay, so with that I close the CACS guidance. And let us now shift over to the next part, which is subjects in commerce and detail about colleges. So don't worry, after the session is over, we are recording right now and I have to speak in a flow to complete this at the right time. So after the session is over, we can meet one-on-one, you can ask me questions, doubts, we will gladly answer. So what are the subjects in commerce, sir, and what are the details about colleges? So everyone in commerce, in 11th standard commerce, hi online students, I believe almost every one of you is also 10th pass out. Yes, online students and parents 10th pass out. So आप लोग सब pass out मतलब अभी आने वाला है रिजल्ट, हो जाएगा अच्छे से सबका। CBSE का आई थिंक आ चुका है ना, CBSE results have been declared. Yes, okay. So in 11th commerce we have total 6 subjects. नंबर 1 इज कंपल्सरी सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बाबा रोजी रोटी है हमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो मतलब हम 11 से ट्रेन करते हैं 100/100 लॉ। देन देयर इज इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, जेबी से प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन एंड व्हाट नॉट, ब्यूटीफुल, कैसे इकोनॉमीज काम करती है, कैसे डिमांड सप्लाई काम करता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग कैसे होता है। देन वी हैव कंपल्सरी लैंग्वेज इंग्लिश, so these 3 are compulsory in all the colleges. Then optional subjects come mathematics or secretarial practice or IT. सर मैथ लेने का क्या? यस लेने का। सर मेरे को मैथ नहीं पसंद तो भी लेने का। सर मेरे को मैथ में 60 मार्क्स है 10th स्टैंडर्ड में तो भी लेने का। मैथमेटिक्स लेने का, ये तो बहुत में पछतावा होता है 3 साल के बाद। अरे सर एमबीए एंट्रेंस में मैथ है, सर लॉ एंट्रेंस में मैथमेटिक्स, सर एमपीएससी यूपीएससी में मैथमेटिक्स, सर सीएससीएस में तो मैथमेटिक्स है। हाँ, एकदम ही मैथ ड्रॉप करना, यू कम एंड मीट मी, टेक कंप्लीट काउंसलिंग, आई विल गिव यू माय टाइम, विल मीट ऑन सैटरडे। क्लासेस होने के बाद आराम से 1 घंटा बैठेंगे, पूरा बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। एंड वन मोर थिंग, सी मैथमेटिक्स का मेरे स्पेशल प्रोफेसर सुरेंद्र गुजर सर, हु इज एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, वो हमारे साथ बैठे हैं। ही हैज मेंटोर्ड स्टूडेंट्स टू 100/100, 99/100 इन मैथमेटिक्स। सर विल गाइड यू अबाउट मैथमेटिक्स, बट एकदम प्राइमा फेशिया आपको बता दूं, मैथमेटिक्स 11वीं में लेने के बाद भी ड्रॉप कर सकते हैं, 12वीं में दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मैथ छोड़ने का नहीं, ठीक है, मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत छोड़ो प्लीज। एंड प्रोफेसर सुरेंद्र गुजर इज हियर विद अस, वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम। ही विल शेयर हिज प्राइवेट नंबर विद यू राइट नाउ। During class, you can contact him, parents and students, on WhatsApp, on Telegram. He will reply to every doubt query you have. He will sit with you on Saturdays and Sundays. सुरेंद्र सर 12वीं के बच्चों के साथ घंटों घंटों बैठते हैं। मेरे सामने बैठो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, 5 घंटा बैठ के मेरे को 10 क्वेश्चन करके दो। 12वीं के एग्जाम को 1 महीना है, बच्चे को पैनिक अटैक आया। दैट इज सुरेंद्र सर। सो डोंट वरी अबाउट मैथमेटिक्स, वी हैव द बेस्ट ओवर हियर। देन ओसी और आईटी का ऑप्शन है, दोनों में से जो लेना है ले लो। ओसी भी अच्छा, आईटी भी अच्छा। ऑप्शनल लैंग्वेज होती है फ्रेंच, जर्मन, मराठी, हिंदी, आईटी। इसमें या तो फ्रेंच लेना है, या तो जर्मन लेना है, या तो आईटी लेना है। ओके, तीनों ही बहुत आसान है। तीनों के पेपर में हमारे बहुत बच्चों को, मेजॉरिटी को आई थिंक 90s में ही है। आईटी के अंदर भी, फ्रेंच में भी, जर्मन में भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है, फिलिंग द ब्लैंक टाइप का पेपर होता है, बहुत टाइम पास पेपर्स होते हैं। मराठी हिंदी नाका घेऊ, कारण कि मराठी हिंदी पेपर्स आर वेरी लेंदी, बहुत लेंदी होते हैं, बहुत लेंदी। आई एम बाय द वे हिंदी टॉपर, मेरे को महाराष्ट्र लेवल पे हिंदी ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में प्राइजेस मिले। मराठी में आई हैव बिन क्लास में टॉप 5। I could not talk in Marathi properly, but I used to go to Marathi tuitions and I used to solve Marathi a lot because मेरे को बहुत डर लगता था, being a सरदार जी from Delhi, और देवा रे देवा मराठी, and मुझे बहुत डर लगता था, but I used to solve it a lot and all my Maharashtrian friends used to get less marks, I used to get very good marks.
सो ऐका ऐकून घ्या, मराठी 3 घंटे का पेपर होता है, बट पेपर होता है 5 घंटे का, पूरा ही नहीं होता। पंक्तियां, लेखक, कवि, इसका उसका, प्लीज फॉर गॉड से। मराठी हिंदी हम बोलते हैं, हम इज्जत करते हैं हमारी मातृभाषा का, हमारी मदर टंग की पूरी इज्जत करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माई किड्स आर स्पोकन टू इन मराठी ऑलवेज एट होम, सो दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ टॉकिंग मोर हिंदी एंड इंग्लिश, बट हम बोलते हैं मराठी में, प्लीज बात करो। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मराठी एंड हिंदी, प्लीज एकेडमिक्स में मत लो। दिल की लैंग्वेजेस है, घर पे घर वालों से बात करने के लिए मराठी यूज करो, हिंदी यूज करो, एक्सेट्रा। पढ़ाई के लिए फ्रेंच, जर्मन, विच आर ग्लोबल प्रोफेशनल लैंग्वेजेस, आईटी विच इज अ ग्लोबल सब्जेक्ट, ये लेना है। प्लस उसमें 100/100 मिलता है। मराठी हिंदी में टॉपर्स को 80/100 मिलता है। 20 मार्क उड़ गए अपने, फालतू का परसेंटेज डाउन हो गया। अकाउंट्स 100/100, मैथ 99/100, मराठी हिंदी 80/100। क्या फायदा, काय को बच्चों को क्यों टॉर्चर करना है? सो विल टॉक टू यू इन डिटेल वंस यू आर कनेक्टेड विद अस, ओके? मराठी हिंदी मत लेना, वी आर कमिंग विद एक्सपीरियंस। सुरेंद्र सर इज गोइंग टू टेल यू द सेम थिंग, ओके? नाउ सर 11th एंड 12th का कॉलेज फॉर्म के बारे में क्या? सो इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव सेंट्रलाइज्ड फॉर्म, इट इज अ ब्यूटीफुल सिस्टम, ऑनलाइन होता है ये, सबको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज लगते हैं। सिंस लास्ट 3 years वी आर फिलिंग द 11th-12th फॉर्म हियर ओनली। 11वीं का फॉर्म हम यहां से भरते हैं। 11वीं का फॉर्म भरने के लिए मैं, सुरेंद्र सर, हमारे सारे लेक्चर्स बंद करेंगे, ये क्लासरूम में आपको बुलाएंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस निकालेंगे, अपना बस नेम, डेट ऑफ बर्थ वो सब आप डालो, एड्रेस आप डालो। 11th का कॉलेजेस मैं और सुरेंद्र सर चेक करेंगे बरोबर है क्या, और हम ही आपको बोलेंगे ये कॉलेजेस सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। क्या होता है, कॉलेज फिल करते टाइम गरवारे 3 बार आता है, वो एक्चुअली गरवारे नहीं, एमईएस गरवारे आता है, एमईएस गरवारे एडेड, एमईएस गरवारे अनएडेड, एमईएस गरवारे बॉयज कॉलेज, एंड ऐसा बहुत सारे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड क्या है। फिर बाल शिक्षण मंदिर बीएसएम इज आल्सो एमईएस बीएसएम, उसमें एडेड अनएडेड क्या होता है क्या नहीं, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो हम भर के देंगे आपको, यू डोंट वरी, यू कम हियर विद अस, आप यहाँ पे आओ, लैपटॉप हमारा आपका सबका यूज करते हैं, वी हैव 5 लैपटॉप्स इन द एकेडमी, आप आराम से आओ, हम आपको पानी चाय देंगे, एसी ऑन करेंगे, शांति से बैठेंगे, अच्छे से बच्चे का भरेंगे, बच्चे का भविष्य का बात है, नो गड़बड़ इन दैट, किसी का भी सुनने का नहीं। सर मेरे को इसने वो बोला, उसने वो बोला, इसने बोला, सियाड़े, अरे यार यू टॉक टू द प्रोफेशनल ना। अभी रास्ते पे चलते हो आदमी को पूछते हो क्या तुम कौन सी दवाई लूं मैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना अपन, सेम थिंग। प्लीज डोंट स्क्रू अप विद करियर। सम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ना इतना सुनते हैं ना, देयर वाज अ गर्ल सच अ नाइस स्टूडेंट, आज से 3 साल पहले की बात है, शी जॉइंड माई 11th बैच and 11th CA batch, she was the only one, last 3 years में not one student has gone. So क्या हुआ मालूम है क्या, रुचा मैम रिमेंबर्स what happened, वो गर्ल ने मस्त लगा 11, she was very happy। उसके पेरेंट्स बोल रहे थे, आई एम सॉरी टू टेल यू दिस, कि तेरे लिए लड़का अभी से देखना शुरू कर रहे हैं, एंगेजमेंट अभी हो जाएगी, बच्ची यहाँ पे 15.5 साल की है। सो एनीवेज क्या मैं करूँ, दिस इज रूरल इंडिया एंड व्हाट नॉट। सो शी सेड सर सीए करूंगी, मैंने उसको बोला बेटा तू सीए कर, अच्छा इंडिपेंडेंस होगा, सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग विल गुड। बाय द वे इन माय एकेडमी 70%, आई डोंट नो हाउ, बट 70% स्टूडेंट्स आर फीमेल स्टूडेंट्स इन बोथ सीए सीएस बैच, आई डोंट नो हाउ। माय वाइफ इज लाइक यू आर ब्लेस्ड, योर एकेडमी इज वेरी फाइन एंड योर टीचिंग इज वेरी गुड, दैट इज वाई इतनी सारी लड़कियां ट्रस्ट करती है, लड़कियों को अच्छी जगह पे पढ़ाई करनी होती है। सो एनीवेज दिस गर्ल, आई कन्विंस्ड हर तू अच्छे से सीए कर आणि ट्राई कर, उसमें क्या है। Day 1 ऑफ द क्लास शी डिड नॉट कम। मैंने बोला बेटा क्या हुआ, नहीं मेरे अंकल ने बोला सीए बहुत डिफिकल्ट है, नहीं मेरे सीए नहीं। बोला वेरी गुड, अंकल सीए है, सीए में है या सीएस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है? नहीं सर 12वीं फेल है, किराना वाले की दुकान है। नो ऑफेंस टू ट्रू स्टोरी, राइट हैंड टू गॉड। बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया घर पे कि सीए ट्राई भी मत कर। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट हाउ वी रेज अवर डॉटर्स एंड सन्स, दिस इज रॉन्ग। किसका सुनते हो तुम यार, किसका सुन रहे हो तुम? हाँ अगर कोई सीए बोलता है मेरे को ये फील्ड बकवास से मत करो, आज एकेडमी बंद करूंगा प्लीज। सो प्लीज डोंट लिसन टू एनीवन, नहीं यही कॉलेज अच्छा। आई विल टेल यू, आई विल गाइड यू, देयर आर मेनी गुड कॉलेजेस। मैं भी एक स्टेटमेंट बोलूंगा, यू माइट बी शॉक्ड। आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग, recording is back on now. Yes, we'll talk about all of this. I'm from Symbiosis College. I don't believe कि right now it is the good college. अगर आपको international degrees करनी है, वहाँ से MBA करना है, go there.
अदरवाइज 11th-12th इज ओके अगर किया तो भी, बट 12वीं नंतर बीकॉम शुड बी फ्रॉम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी विच इज सपोर्टिव ऑफ CSES कोर्स. I'll tell you all of that. So all of this guidance is required. So we will tell you. By the way, sir, off the bat, which are good colleges जहां पे हम जा सकते हैं, बस बता के रखता हूं. We have a full list and depending on your preference. Number 1, college selection के अंदर please don't listen to anyone but you, your heart, your child and me. जहां पे रहते हो उसके नजदीक जो कॉलेज है दैट इज द बेस्ट फॉर द चाइल्ड. बोर्ड सबका सेम है, मार्कशीट सबका HSC का आने वाला है. वी वांट नियर बाय कॉलेज. आई डोंट वांट टू सेंड माय चाइल्ड इन ट्रैफिक एंड व्हाट नॉट इन दिस एज. हमारे टाइम पे पेरेंट्स, हम साइकिल से जाते थे, मैं भी साइकिल से स्कूल कॉलेज गया हूं, राइट. हमारा टाइम डिफरेंट था, दिस इज डिफरेंट टाइम. नियर बाय कॉलेजेस में आप एडमिशन लो. सर, which are nearby good colleges? As I said, number 1 is Kaveri, one of the finest institutions that we have right now in Pune. Kaveri College, KHS School के नाम से, कलमाड़ी कावेरी ऐसे नाम से जानते हैं. Very fine college. Kaveri is nearby. और अच्छे colleges are DSM, गरवारे, BMCC, Symbiosis, Modern College, वाडिया College, जोग, सूर्यदत्ता and many others. Just off the bat मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, सो वी आर वेल कनेक्टेड विद ऑल दीज नियर बाय कॉलेजेस. बट आप जहां रहते हो वहां का कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है. वी विल गाइड यू. प्रोफेसर सुरेंद्र गुजर, एक्सपर्ट इन 11th, 12th एंड कॉलेजेस, एंड आई वी विल गाइड यू. ओके, सो सर, अब CSCS की कोचिंग राइट फ्रॉम 11th, 12th क्यों शुरू करने का? सो 11th, 12th के साथ इसलिए शुरू करना है, नॉट बिकॉज मैं बहुत ज्ञान देने वाला हूं 11th स्टैंडर्ड में. आई एम गोइंग टू टेक 10 hours ऑफ CA कोचिंग. बिल्कुल नहीं. सैटरडे को एक दिन कोचिंग होता है CSCS का 11th स्टैंडर्ड में. 11th स्टैंडर्ड में व्हेन द चाइल्ड एनरोल्स फॉर CSCS कोर्स, बूम, उधर ही हाई चांसेस आर दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. उसने नहीं भी किया ना तो भी इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, शी इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. आई टेल यू व्हाई. अ चाइल्ड हु नोस कि मैं CSCS का स्टूडेंट हूं इज गोइंग टू स्टडी, is going to be balanced, is going to be disciplined, is going to take their life seriously. A child who is like nantar bagu sir nantar is going to go to Khadagwasla, bunk colleges, go to Lonavala, go to Bhushi Dam, here and there and do time pass. They are not going to be disciplined. They are not going to be mentored by AD Singh every Saturday and Professor Surendra Guzar every day that you must get up at 5. You must read Economic Times. Look at what is NSE BSE. लुक एट CNBC. क्या हो रहा है? मार्केट आज ऑल टाइम हाई पे. वाई? क्यों हो रही है? इलेक्शन रिजल्ट से पहले क्यों हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी? ये सबका ज्ञान आपको हर दिन मिलता है. एवरी सैटरडे यू आर कनेक्टेड विद मी. आई विल मोटिवेट यू फॉर 1 week. क्या करना है, क्या नहीं करना. एंड CSCS की क्लास से पहले ही द चाइल्ड विल इन देयर माइंड बिकम अ हीरो और हीरोइन. वंस दैट हैपेंस, बच्चा ऑटोमेटिकली आगे करेगा, उसका टेंशन ही लेने का. So that psychology, that mentality, that discipline, that ability, that proud feeling, that recognition that I am a CSCS of the future, that will help the child do wonders. Students and parents, all my 12th standard 100 upon 100, 99 upon 100, 99 upon 100 are all CSCS students. It is not a coincidence. अभी क्यों पढ़े? Study load and fees get split over 2.5 years. हमारा जो बैच है CSCS का, इट इज 2.5 years. पूरा 11th स्टैंडर्ड, पूरा 12th स्टैंडर्ड एंड 12th नंतर इमीडिएटली CA attempt is in September and CS attempt is in July. The fees are same as 4-month batch. Fees same है. CS batch starts from 4,150 rupee per month including GST. Per month उतना ही EMI है. CA batch का EMI सिर्फ 5,000 है. उसमें CA पूरा इंक्लूड होता है, all subjects of 11th, all subjects of 12th. CA coaching is different. 11th, 12th coaching in Edward Academy is different. 11th, 12th morning, CSCS afternoon and evening. ये सब include करके I'm saying per month fee. I'll tell you about it. Students become more focused and disciplined right from 11th standard. 11th is the base. 11th में जिसने पढ़ा, they're going to be successful in life. We teach only those subjects in 11th and 12th which are common in CSCS. में फालतू का भलतच नहीं सिखाने वाला 11वीं के बच्चों को. ये बच्चों चलो आज से लॉ पढ़ना, ना 11वीं में लॉ नहीं है ना तो मैं लॉ नहीं सिखा रहा. लॉ अपन पढ़ेंगे 12वीं में थोड़ा सा और 12वीं नंतर बाकी का 90%. राइट. CSCS क्लासेस 11वीं का सिर्फ हफ्ते में 1 दिन होता है, तो बच्चा बर्डन नहीं है, उल्टा बच्चे को मजा आता है. और सर CA क्लास आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. नॉट वन चाइल्ड
हैज टोल्ड मी इन माई प्रोफेशनल करियर, एडमिन टीम बोला है तो तुम बताओ किसने बोला है, दैट सर्स की क्लास में मजा नहीं आता. वी हैव लाइक 1000 मैसेजेस, 1000 पिंग्स. सर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, वेरी प्रोडक्टिव क्लास, लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ लर्निंग ऑल्सो. ओके, सो 11वीं का CSES क्लास हफ्ते में एक दिन होता है. सो चाइल्ड इज नॉट बर्डन. एक दिन होता है. फॉर 12th 4 times a week, only 2 hours. This helps the child score better in 11th 12th. So 11th 12th के अंदर डिमांड सप्लाई, वो 11th 12th क्लास में मॉर्निंग में अलग होता है, सुरेंद्र सर सिखाते हैं. इन द इवनिंग टाइम आई टीच सेपरेटली. आई टीच फ्रॉम CSES बुक्स, सुरेंद्र सर टीचेस फ्रॉम एडवर्ड एकेडमी 11th standard 12th standard बुक्स. सो रिपीट होता है सब कुछ, एवरीथिंग इज रिपीटेड, बट इन CSES इट इज रिपीटेड इन डिफरेंट वे. उसमें थोड़ा इन डेप्थ होता है, एंड द रिजल्ट्स आर गारंटीड. Almost all of my merit rankers, almost all of my students who give 11th 12th say CSES join this batch, they are successful. In fact, Surendra sir, Tanvi ma'am, we all faculties, we are discussing that maybe we are going to stop CSES batches post 12th. We will only focus on 11th 12th because these are our stars. यही हमें merit rank लाके दे रहे हैं. It is not because मैंने उतना सिखाया है, मे बी प्राइमरली थोड़ा वो भी है, बट प्राइमरली इट इज बिकॉज ऑफ मेंटल डिसिप्लिन. इट इज मेंटल डिसिप्लिन, सो दैट हैपेंस. नाउ 11th 12th में वी स्टार्ट टीचिंग CA फाउंडेशन एंड CA/CET. व्हेन यू आर इन FY BCom, योर इंटर एग्जीक्यूटिव विल स्टार्ट. इन सेकेंड ईयर BCom आई एक्सपेक्ट कि आपका इंटर एग्जीक्यूटिव खत्म होना चाहिए. थर्ड ईयर BCom के साथ आपका CA फाइनल CS प्रोफेशनल खत्म हो जाएगा. BCom नंतर you can do LLB, MBA और some other nice course along with your CA/CS articleship. BCom के साथ articleship avoid करने का. हाँ, CA में थोड़ा जल्दी articleship होता है, that we have to start. उसके लिए BCom colleges कौन से select करने, we will tell you after 12th standard. And we have these bona fide certificates we give to our students that you are studying in CA/CS class to whomsoever it may concern. That is why I might be absent for some college lectures, but I will cover up my syllabus, and most of the colleges in Pune respect us. They know who we are. Nearby colleges show tremendous respect, and provided you are doing good in BCom, provided you are attending all the important guest lecture, doing assignment, doing submission, you are golden. No worries. Okay, we will talk about this personally. All right, so this is the way हमारा पढ़ाई जाने वाला है. प्लीज नोट दैट 12वीं नंतर BCom इज द मोस्ट रिकमेंडेड डिग्री फॉर CA/CS स्टूडेंट्स. नॉट BBA, नॉट BBM, नॉट BA, LLB एक्सेट्रा. LLB करना है तो BCom की बात करना है, इससे अपने पास 3 डिग्री आ जाती है. ओके, इसके बारे में भी जिसको डिस्कशन करना होगा हम अभी या 12वीं के बाद करेंगे. ओके, डिटेल्स अबाउट CA/CS कोर्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू. एंड नाउ बिफोर आई गो टू 11th batch frequently asked questions and 11th standard frequently asked questions, I'll just hand over the mic just for 5 minutes to my star faculty, Professor Surendra Gujar, who is very popular among students. सर को स्टैंडिंग ओवेशंस मिलते हैं 12वीं के टाइम पे जब सर असेसमेंट्स करते हैं. तो अमेजिंग फैकल्टी. सुरेंद्र सर, आई हैंड ओवर द स्टेज टू यू फॉर 5 minutes. थैंक यू सर. Surendra sir was also one of the invigilators in CA exams. He is well connected with the industry. Yes, good evening everyone. Very nice to see you all here. So मैं ज़्यादा आपका टाइम नाही लूँगा, 5 मिनिट बात करा. सो आता आपण 11वीत जाणार. कॉलेज हा टॅग लागणार आणि 11वी 12वी कॉलेजमध्ये आपल्या पाय ठेवल्यावर शिंग फुटणार. कॉलेज हे नावाला आहे. इट इज हाई स्कूल ओनली. पहले ये बात क्लियर कर लो, वो हाई स्कूल ही है. यू विल गेट HSC. व्हाट इज HSC? हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट. अभी आपने क्या दिया? SSC. व्हाट इज SSC? तो वही HSC है. तो इट इज स्कूल ओनली. तो हम पहले ही दिन से बच्चों को यही ट्रेन करते हैं कि कॉलेज है, बस क्या है कुछ कॉलेज में यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाने का, बट इट इज लाइक अ स्कूल. तो पढ़ाई भी हमें कैसे करनी है? स्कूल के जैसे. वही नोटबुक्स मेंटेन करनी है, होमवर्क बुक मेंटेन करनी है, क्लास वर्क बुक मेंटेन करनी है, मुझसे साइन लेना है, स्टाफ से साइन लेना है. एवरीथिंग हैज टू बी लाइक स्कूल. वो लिंक नहीं टूटना चाहिए. जो डिसिप्लिन के साथ अभी आप 10th तक आए हो, वो डिसिप्लिन का लिंक नहीं टूटना चाहिए. कई बार क्या हो जाता है फिर 11th 12th में वो अरे कॉलेजला गेलो आता जाऊ दे, कॉलेज बंक मारायचं, थोडं फिरून येऊयात, कॉलेज लाइफ एन्जॉय करूयात. हाँ है थोड़ा एन्जॉय भी करने का, जाके भी आने का, घूमना, बट
जो डिसिप्लिन आपने 10th तक मेंटेन किया, प्लीज उसको आगे मेंटेन करना है। दूसरा चीज, जब हम सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं, हमें सब्जेक्ट्स क्या सिलेक्ट करने हैं, कैसे सिलेक्ट करने हैं, एक तो आप पर्सनली हमसे बात करो। तो जैसे सर ने बताया सब्जेक्ट्स कौन कौन से, उसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। मैं इसलिए इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, आप लोग मैथमेटिक्स लो, बट क्या है, आप 11th-12th में आपको 10th तक ऑप्शन दिया क्या? किसी ने ऑप्शन दिया क्या? किती नाही आवडला विषय तरी ऑप्शन होता का 10वीपर्यंत? नाही. आता ऑप्शन दिलाय म्हणून घ्यायचा का, सोडून टाकायचा का मैथ्स? नहीं. फिर क्या होता है, जब आप 2 साल गैप लेके, लेट इट बी लाइक CA/CS तो ठीक है, उसके लिए तो है, बट 11th-12th का गैप लेके 2 साल गैप लिया मैथ्स में, जब आप फर्स्ट ईयर में गए, फर्स्ट ईयर में फिर से मैथमेटिक्स है, 2 साल कुछ भी याद नहीं है, A+B² काय होतं ते 10वीत केलं होतं, अभी कुछ याद नहीं है। ये गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि लो आप मैथ्स। FY में है, फिर आप CA/CS में तो है ही है, CA में भी है, CS में भी है, MBA एंट्रेंस में है, CET में है, क्लैट में, जहां जाओगे मैथ्स पीछा, MPSC UPSC में, बैंक का एंट्रेंस में जाओगे वहां पर भी है, बैंक PO में भी जाओ वहां पर भी है। आप जो भी करियर आगे चुनने वाले हो, तो 11th-12th में आप कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, उसके बेसिस पर आपका आगे का करियर होने वाला है। अगर यहाँ पर 2 साल आपने ब्रेक लिया तो आगे फिर ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, सो वी आर ऑलवेज हियर। मेरा पर्सनल नंबर हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक पेरेंट के पास होता है। आई ऑलवेज शेयर माई नंबर, आई जस्ट शेयर इट हियर। ओके, सब्जेक्ट सिलेक्शन कसं करायचं, कॉलेज सिलेक्शन कसं करायचं, वी आर हियर टू गाइड यू। अपने मन से मेरी फ्रेंड वहाँ जा रही है या फिर मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है इसलिए मैं वो कॉलेज डाल दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाद में पश्चाताप होता है, मैं बड़त घेतला कॉलेज। कई बार बच्चों को देखा, मैंने मना किया बच्चों को, अरे मत लो, फिर वो 12th में स्विच करते हैं, फिर अगर वो ब्रेक टूट जाता है। सो जस्ट बी फोकस, ये ध्यान में रखना कि आप स्कूल में ही हो, बच्चों से मैं खासकर बात कर रहा हूँ, आप स्कूल में ही हो, बस यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना है। कुछ कॉलेजेस का तो यूनिफॉर्म भी है, आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है। जितना सीरियस आप 10th तक थे उतना ही सीरियस आपको 11th-12th में भी होना है। ओके, थैंक यू। शॉर्ट एंड स्वीट, बिकॉज वी स्टार्ट स्पीकिंग तो बहुत टाइम लग जाता है। थैंक यू सो मच सर। यस, सो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुरेंद्र सर को भी बोलनी है, मुझे भी बोलनी है। वी विल सब्सिक्वेंटली टॉक टू यू ऑल्सो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ अवर डिस्कशन। सो some more points also I have jotted down which I realized when Surendra sir was talking. Going back to some common questions and then I'll just quickly tell you about the batch schedule at Edward Academy. Very fast now, we are just about to end with the session. Thank you so much for your patience. Sir, CA Foundation के लिए मैं कब enroll करूँ? जो पढ़ाई है CA Foundation की, that you can start after 10th standard. Again, burden लेने का नहीं है, 12 घंटा नहीं पढ़ने का. In fact, no homework for CA Foundation class in 11th standard. नो होमवर्क फॉर CSCET क्लास ऑफ 11th स्टैंडर्ड। डोंट वरी, मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा। हाँ, होमवर्क क्या दूंगा, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ो, इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पढ़ो, व्हाट इज RBI, व्हाट इज SBI, थोड़ा GST के बारे में पढ़ो, थोड़ा ये न्यूज़पेपर पढ़ो, थोड़ा ये करो, ये मूवी देख के आओ, वो मूवी देख के आओ, इट इज वेरी गुड फॉर कॉमर्स। सो इतना ही होमवर्क होगा, राइट? फन होमवर्क होगा। You can register any time after giving 12th hall ticket or mark sheet. So पढ़ाई अभी शुरू होगी, but 12 hall ticket नंतर we are going to get you registered. All registration is done here. All articleship support, exam form, everything is done here. Don't worry. We provide registration support at Edward Academy. My team is expert. उनके पास इंस्टीट्यूट के नंबर्स है, कॉन्टैक्ट्स है, they'll call them. ये सिग्नेचर का इशू हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो सॉर्ट आउट करके आपको दे देंगे। सर, CA/CET के लिए एनरोल कब करूं? सेम थिंग फॉर CA/CS बोथ, दोनों 10वीं के बाद पढ़ाई शुरू करो, बट एग्जाम यू कैन गिव आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। सर, व्हाट अबाउट ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन के लिए CA/CS के साथ अपने को BCom करना है। BCom का एकदम
बीकॉम सेम सिलेबस होता है CA/CS जैसा, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री प्लस अपने को एक डिग्री मिल जाती है। बीकॉम डिग्री इज अ स्टेपिंग स्टोन। बीकॉम डिग्री के बेसिस पे अपन CA इंटर, CS इंटर, CMA इंटर, LLB, LLM और फॉरेन यूनिवर्सिटी हम कर सकते हैं। हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। वी कैन डू MCOM, वी कैन डू MA इकोनॉमिक्स एंड मेनी अदर थिंग्स। It is a stepping stone, so that graduation is very important. दो स्टूडेंट्स मुझे मिले थे बाहर के who had not pursued graduation with CA. सर CA इंटर झालंय बट ग्रेजुएशन मैंने छोड़ दिया, उनको फोर्सफुली ग्रेजुएशन करने लगा। आज दोनों ने मेरे को थैंक यू बोला, सर थैंक यू। ग्रेजुएशन नहीं छोड़ने का, बिल्कुल नहीं छोड़ना, प्लस इट इज अवर बैकअप डिग्री। सर मैंने सुना है that CA/CS course are very difficult, how can I crack them? No, between you and me. आज मैंने 3 वर्ड का CA फाउंडेशन को क्वेश्चन सिखाया, 3 वर्ड्स का क्वेश्चन। वी सॉल्व्ड इट आई थिंक 45 seconds or 60 seconds. I can show you video recording also. That question was for 5 marks. Students were shocked. 5 mark का question we could solve orally, mentally in 45 to 60 seconds. Just an example. Not every question is that easy, but just saying. It is very doable. If you can pass 12th standard, CA foundation is just the next level. You can pass CA foundation. It is very easy. It is very doable. हाँ, what children do, what students do, दिन भर घूमेंगे, टाइम पास करेंगे। See, CA के अंदर, listen to me. This is a major difference. CA, CS are distant learning. But engineering, MBBS, MBA में LLB के अंदर you have college 75% compulsory attendance, college viva, college practical every day, viva और उसके marks add हो जाते हैं, and there is semester pattern. In CA/CS, boom, after 1 year go, 1 paper, 100 mark 3 hours, 6 days in a row, and then एक में फेल हो गए तो पूरा फेल। इंजीनियरिंग MBBS सब में एटीकेटी बैठता है। एटीकेटी मतलब पता है क्या, 2 सब्जेक्ट डाउन हो गए तो भी अगले CA/CS में से नहीं, तो दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट। If you have good मार्गदर्शन, you have good mentorship, every day you study, every Saturday we have test, every Saturday. अभी CA/CS दोनों बैचेस का आज भी टेस्ट लिया मैंने। So every Saturday we have test, we have evaluation sheet, attendance, behavior in class, कितना रिप्लाई करते हैं, टेस्ट स्कोर, everything. I can predict with 90% accuracy who will pass or will fail. You put your 100% and you come to 95% of the class and you complete 95% assignment. You will pass CA/CS in first attempt, I guarantee you. कुछ भी नहीं है, it is nothing, कुछ भी नहीं है, okay? So CA/CS courses are quite relaxed, easy. वो BCom के सारे लेवल के जैसा ही CA इंटर और CS एग्जीक्यूटिव है। It is just like if you are BCom pass out, you can do CA इंटर CS एग्जीक्यूटिव directly without even foundation level. So really not that difficult. और एक चीज, सर गांव के बच्चे होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, मेरे पास आते हैं यार, 18 साल के बच्चे आते हैं जो खुद जॉब करते हैं दिन भर, मेनी सच किड्स। सर खाने के बंदे, मैं सबसे पहले बच्चे को चॉकलेट दूंगा, कुछ खाने को दूंगा, लाइक बेटा बोल तू क्या चाहिए तेरे को, तू मेरे को बता। सर मेरे को जॉब दिलाओ, मेरे को ये करो, मैं करके देता हूँ। सर आता तुम्हें ऐका, मैंने CA/CS के लिए एनरोल किया, हाँ आपने फी कंसेशन दिया, सब दिया, थैंक यू, ओके, बट मैंने किया, सर इंटर हो गया, फाइनल अटेम्प्ट को मेरे को टाइम लग रहा है। सर जॉब है 8 घंटे 12 घंटा, फाइनली दे पर आता का है, इसको हम बोलते हैं सेमी क्वालिफाइड प्रोफेशनल। क्या बोलते हैं हम? CA इंटर या CS एग्जीक्यूटिव पास आउट को सेमी क्वालिफाइड प्रोफेशनल। बूम, you get job in the job market as compared to BCom. If you are BCom, MCom, you come to me and you are BCom plus CA inter plus CS executive, I'll hire you like that. Your knowledge is there ना, इसको हम सेमी क्वालिफाइड प्रोफेशनल बोलते हैं। वी आर लुकिंग फॉर सच पीपल राइट नाउ ऑल्सो। अगर आपकी पहचान में कोई है who has done half level of CA/CS, I am ready to pay them good salary. Many people are ready to pay them good salary. मोहिनी मैडम जस्ट अभी आपको 2 लोग का वो जॉब का आया कि नहीं, यही क्या बोला उन्होंने, सच बोलो मैडम, सच बोलो, बोला कि नहीं उन लोग ने? CA इंटर CS एग्जीक्यूटिव वाले लोग दो, एक ग्रुप भी चलेगा मुझे। सो देन वी कैन स्टार्ट जॉब एंड देन जॉब के बेसिस पे अपन CA फाइनल दे सकते हैं, CS एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं, ऐसा बहुत लोग करते हैं। सो धीरे धीरे हो जाता है वो कोर्स, एंड देन लाइफ अटकती नहीं है आपकी, उल्टा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सेमी क्वालिफाइड आप ऐड हो जाते हो। डेली 4 to 5 आवर स्टडीज 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स 4 to 5 आवर स्टार्टिंग 3 months, द रिमेनिंग 2 months you have to study for 8 hours and last 1 month 12 घंटा। स्ट्रिक्ट शेड्यूल, गुड मेंटरशिप, कोचिंग विल गारंटी सक्सेस। सुनो स्टूडेंट्स, फोन बंद, टैब बंद,
कंप्यूटर बंद 12 घंटा, रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद, टैब बंद, टीवी बंद, रात को सोने का 9:30 10 मैक्सिमम, सुबह उठने का ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे मैक्सिमम बाय 4:30, नहीं होता 4:30 चल 5, नहीं होता 5 चल 5:30, चलो 6, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. When you study, you sit upright on a study table and chair. सर स्टडी टेबल चेयर नहीं, किचन का ओटा, किचन के ओटे पे बैठा है. टू सिट इन किचन का ओटा, क्योंकि शिव तीर्थ नगर में जो हमारा घर था उसमें एक ही बेडरूम था और मेरा भाई इडियट सोता था, मेरे को गालियां मारता था, स्टूपिड फेलो. मेरा हो गया सीए फाइनल, तेरे को पढ़ने का तो जा किचन में जाके पढ़. आई यूज्ड टू स्टडी इन किचन, किचन के ओटे पे. सर किचन का ओटा भी नहीं है, मांडी डालो नीचे मस्त एकदम, चौकड़ी मार के बैठो, फोल्ड योर लेग्स एंड सेट, मांडी डाल के मस्त एकदम बैठने का, नीलकमल की चेयर के ऊपर बैठने का. पढ़ने बैठे फोन बंद, दूसरे रूम के अंदर फोन 12 घंटा, 12 आवर्स. मैंने फोन लिया क्या? डिड आई टेक द फोन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू? utmost डिवोशन टू यू, utmost attention to you. That is how you do successful things in life. Okay, whatever you study, you make notes, you write it down. Ganit, accounts, tax, written, law, English, anything you make notes, you write it down, you keep on writing. These are some tips and tricks amongst many others that will help you become CSCS in first attempt. Okay, so don't worry. So at Edward Academy, we are very proud that thousands of our students have cleared CSCS course. They are doing very well today. Mathematics के बारे में मैंने आपको already बता दिया है. I'll just quickly brief you in 2 minutes about our batches. So our 11th standard batch and 11th standard CA batches are starting now in the month of June. So we are going to start on 22nd June with our CSCS batch and our 11th standard all subjects batch. 11th standard subjects are taken by different faculties, primarily Professor Surendra Guzar and me. अकाउंट्स के कुछ एरिया जैसे फाइनल अकाउंट्स में सिखाता हूँ, बाकी सुरेंद्र सर सिखाते हैं, ही इज अवर स्टार फैकल्टी. एंड जो CSCS के बैचेस है वो प्राइमरली मैं लेता हूँ. मैथमेटिक्स इज टेकन बाय सुरेंद्र सर एंड एडवर्ड अकेडमी हैज 9 अदर CSCS LLM LLB faculties who also teach. Amongst them we have the vice chairperson of ICSI Jodhpur chapter, very popular CS LLM Rupali Bora Purohit madam, CS LLM Suraj Bora sir, CS Sarmishta Kaisas madam, CS Archana Joshi madam, CS LLM Archana Joshi madam and many others. और भी काफी सारे हमारे faculties हैं. So they teach, but I teach lot of practical areas. So almost every subject, at least 30 to 40 marks I teach. So all the books are authored by me. सब मेरे नाक के नीचे से जाता है, कौन सा स्टूडेंट कौन सा क्लास बंद करता है ये सब मुझे मालूम पड़ता है. That is why we are able to give good mentorship and we are having amazing past results. Okay, if you look at EMI facility, if you are looking at one shot fee, तो CA की one shot fee is just 64,000 for 11th standard. Please note इसमें CA भी include हो जाता है और 11th के accounts, math, M1, M2, economics ये सब include होता है. तो वो हमने डिटेल में यहाँ लिखा है, you can check it out. And if you are looking for installments, so installment is just 5,000. All the charges include GST. They include all recorded lectures, infinite views. Every day you will get recording. 11th, 12th also, CSCS also. Everything is recorded. You are ill, sir. Office lecture 1000 बार देखना है. You can watch it anytime on any device. The recordings are available to you. Any doubt in recording, कुछ open नहीं हो रहा, you call the admin team immediately. They'll sort it within 24 hours. Okay. So 5,000, and if you are opting for CS course, then for CS plus 11, 12, the 11th standard fees are 45, 12 fees are only 45,000, including GST, including printed notes, including all taxes, all charges, everything. And per month installment, if you see, it is 4,150 only. We charge the same fees for 4-month batch after 12th for CSCS, and for 2.5-month batch also same fees of CSCS. You have option of joining only 11th, 12th with us, or 11th, 12th plus CSCS hybrid, or only CSCS also. So you can do any permutation combination with us, and that's it. Fees or बाकी details के बारे में you can meet my counselors and admin team. Some more important points I wanted to tell you. The session is almost over. 11वीं 12वीं के अंदर I hope you did not misconstrue. बाड़ानो बच्चों 11वीं 12वीं में हर दिन कॉलेज जाना है. हमारा क्लास होता है अर्ली मॉर्निंग, देन आप 1 घंटा डब्बा खाओ, क्लासरूम विल बी ओपन, एसी विल बी ऑन, डब्बा खाओ एंड डायरेक्टली गो टू कॉलेज फ्रॉम हियर. ओके, 11वीं 12वीं में कॉलेज इज इंपॉर्टेंट. यू गो टू कॉलेज एंड यू अटेंड योर कॉलेज. ओके,
सुरेंद्र सर और मेरा पर्सनल नंबर ये रहा, दिस इज आवर पर्सनल नंबर। जस्ट क्विकली शेयर दिस विद यू, जो मैंने यहां पे लिखा है। अरे बाप रे, दे आर वेटिंग, उनका अपलोड करना है सब कुछ। ओके, यस, सो आई एम प्रोफेसर CA सिंह। मेरी एक गुरु मैडम है, उन्होंने बोला था अपने नाम के आगे हमेशा अपनी डिग्री लगा बेटा, डोंट डिसरिस्पेक्ट योर डिग्री। प्रोफेसर CA सिंह। माय मोबाइल नंबर इज 7711037777। अभी आप कॉल करोगे और आप एक्सपेक्ट करो मैं चालू क्लास में उठाऊंगा, तो दैट माइट नॉट हैपन, बट येस, आप प्लीज मुझे एक व्हाट्सएप पिंग ड्रॉप करो। यू कैन जस्ट पिंग हाई, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, टिपिकली विद इन 24 to 48 आवर्स आई रिप्लाई। सेम विद प्रोफेसर सुरेंद्र गुजर सर। सो प्रोफेसर सर, आपका नंबर क्या है? 840 ओके, करेक्ट सर, करेक्ट लिखा ना मैंने? 840-808-0070। ओके, ग्रेट। सो दीज आर आवर प्राइवेट मोबाइल नंबर। हम 12 घंटा सिखाते हैं हम दोनों ही। सो इफ यू कॉल अस ड्यूरिंग द डे, वी माइट नॉट बी एबल टू टेक योर कॉल्स। यू कैन एनी टाइम टेल अस कि सर प्लीज कॉल मी बैक, तो हम ब्रेक में क्लास होने के बाद कॉल करेंगे। माय एडमिन टीम ऑफिस नंबर, दीज आर सेंट्रल लाइन, ये ना गोल्डन लाइन है, इसको याद रखना इजी है। 2539 आणि उसके पहले 8888, जितनी बार 8 डालना बस टोटल 10 नंबर्स कर देना। एंड दिस लाइन इज अ गोल्डन लाइन। बच्चे क्या क्या चीज के लिए कॉल करते हैं, मामा ने पकड़ लिया, ट्रैफिक कॉप्स ने पकड़ लिया है, 500 रुपया लेके आओ। मैडम मेरा कुछ इश्यू हो गया कॉलेज में, इधर आओ, ये नंबर पे कॉल करते हैं। मैडम 2000 रुपये देने थे फ्रेंड को, जरा दो। एक बार तो 10,000 लिए थे मैम संकेत, आके 10,000, अरे सर कॉलेज में UPI नहीं चल रहा, 10,000 कैश दो, तो 10,000 हमने दिया। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल नंबर। मैं भी इनको कॉल करता हूँ कभी कुछ हेल्प लगा। दिस नंबर इज ऑलवेज ऑन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स एंड माई टीम इज अमेजिंग। इतनी उनकी तारीफ लोग पेरेंट्स आके करते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। इवन इफ यू आर नॉट अवर स्टूडेंट्स, विल हेल्प यू फ्रॉम अवर हार्ट, दैट इज व्हाट टीचर्स डू। And another also central line number is 8888399599. So my number are 7 series, academy number are 8 series. Okay, with this I would like to thank all of you. We will conclude our session here. Please note that this is not the end of it. Surendra sir and I, we are available. There is much more guidance that we have to provide to you, but time is limited. सबका फिर खाने का टाइम होता है, we have to carry on with our lives. I also have very early morning class tomorrow 7 AM. So we will conclude here. But आपके कुछ भी डाउट्स है तो प्रोफेसर सुरेंद्र सर एंड आई, वी आर हियर। आप अभी हमसे पूछ सकते हो। इफ यू फील दैट द डाउट रिक्वायर्स अ वेरी लेंदी आंसर, हम आपसे प्राइवेटली बात करेंगे। ओके, यू ऑलरेडी हैव अवर नंबर, प्लस इन द ब्रोशर ऑल्सो माई नंबर इज मेंशन्ड. If you forget my number, it is already there in brochure. Surendra sir's number we can send you also. Okay, so any question, any doubt at the outset जो आपको अभी पूछना है, ये तो privately आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं. You can ask me privately. So thank you so much. Yes sir. You also conduct CA intermediate and Yes sir. CA/CS all levels. For final level we have some contacts, we have some associations. तो वो हम हमारी दूसरी कोचिंग्स के साथ कंडक्ट करते हैं, बट ऑल लेवल्स. CS प्रोफेशनल के कुछ सब्जेक्ट यहाँ होते हैं, कुछ सब्जेक्ट हमारे टाइप्स में होते हैं. या सर, इंटर. एंड इनफैक्ट वी हैव अमेजिंग रिजल्ट्स इन इंटर. इंटर में 6 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट 100% आई टीच. उसके लिए इट स्टार्ट्स एट 6:45 एवरी डे. दैट बैच, इट इज़ वन ऑफ माई स्पेशल बैचेस. वो बैच के लिए मेरा हाउस होल्ड जल्दी सोता है. सो मॉर्निंग 6:15 आई लीव. मॉर्निंग अबाउट 4:45 आई गेट अप for that one batch. Back to back class hota hai. It is an amazing batch, one of my favorite batches. I love teaching it. And the remaining 2 subjects are some part I teach and remaining part my faculties, my 3 other faculties. Generally for final, आप लोग को शायद पता नहीं होगा, generally for final it is students with articleship. So actually you are not allowed to take final class during articleship timing. It is early morning and late evening. So there is restriction. So everyone buys pen drive lecture for final. By the way, and फाइनल में CS और CA दोनों में इट इज मोर ऑफ आर्टिकलशिप में क्या किया, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. क्या किया तुमने, कौन सा फॉर्म है, कौन सा क्या. तो मेनी स्टूडेंट्स जॉइन ओनली सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स. उसका एक डिफरेंट ही बॉल गेम होता है उसका. इट इज अनलाइक योर फाउंडेशन एंड इंटर लेवल. बट येस, वी टेक इट हियर एट एडवर्ड अकेडमी.
Yes, okay, great. So आपको किसी को भी बात करना है, I am available tomorrow also for meetings. I am available Monday all throughout next week. Even Surendra sir, so we can invite Surendra sir also. जैसे वो available होंगे, अगर आपको mathematics का डाउट होगा या और कोई डाउट होगा, and you can come and meet me right now also, entire next week also. जो भी आपको डाउट होगा, just one small thing I wanted to tell all of you. In our 11th and 12th batches, we have only maximum 17 to 18 seats, and the seats get full. So if you want to take admission, you should take admission within the next week. जिसको भी लेना है. Again, please note, you are not supposed to pay entire fee. You can just pay a token of 5,000, 10,000, and your seat is blocked. Because the classroom upstairs, जहाँ पे which is 11th 12th classroom, वहाँ पे 12वीं के बच्चों ने अपना पूरा full कोलाज वोलाज भी लगा के रखा है. बच्चे बोलते हैं हमारा क्लासरूम है सर ये. So the upstairs classroom is a small classroom which can only accommodate, Surendra sir correct, 17, 18. I think उतने आते तो सर कभी कभी नीचे ले लेते, नीचे का क्लास खाली होता है तो. So that is the capacity that we have. Yeah, in our CSES batches, we have batches of 35 to 40 students which can accommodate in this classroom. वहाँ पे भी हमारा restriction है, हमारे CS executive batch is almost full right now. So at that point हम admissions को रोक देते हैं unless it is an online admission. तो offline admissions में हमारा limited admissions है, and already 3 admissions are done in 11th standard. Already पहले से ही लोगों ने ले लिया है. तो if you want, you can just pay nominal amount and you can block your seat. ठीक है? Okay, so thank you so much everyone, online students and parents, thank you so much to you also for being so patient. It is not that बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे इसलिए सक्सेसफुल होंगे. It is the parents and the culture of the household. You are concerned about your future, that is why you are here, you are attending these sessions. That speaks volumes about the culture of your family. So my blessings to all families, all students, because they are blessed with wonderful parents like you, they are going to be successful. Okay, so आपको और कुछ भी डाउट है, you come and meet me. Thank you so much. May माँ सरस्वती bless all my young students.